Hello dear friends, today we learn about the coordination in plants. So dear friends, what is the mean by the coordination in plants? So in a human beings, we know in human beings we have a nervous system, but in the plants they doesn't have the nervous system or doesn't have any specialized tissue. So in the plants, how can they coordinate with the how can they coordinate with each other and every situation? So we are talking about the coordination in plants in our today's lecture and how they coordinate with the many situations or how they perform or how they doing the any other activities. So let's start our today's lecture. In our today's lecture we see the coordination in plants. So coordination in plants like animals or a human beings, they doesn't have a nervous system and doesn't have any specialized tissue, any muscle cells, doesn't have a nervous system or any specialized tissue or a nervous system or muscles. So now we see the plants do not have the possess any muscular tissue like जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के पास में उनकी कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से, अगर मस्कुलर टिश्यू नहीं है, अगर हम अगर हम एग्जांपल ले हमारे खुद का, तो हमारे पास तो मस्कुलर टिश्यूज, हम जो वर्क करते हैं, जो फंक्शंस करते हैं, तो वो सारे क्यों करते हैं, तो वो सारे ही फंक्शंस हम अपने लिए करते हैं और इजीली हो जाते हैं। तो इन सब के अंदर कोई भी हमें डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तुरंत ही अपना हाथ वापस ले लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सामने जो चीज़ है वो क्या है, वो गर्म है, वो हॉट चीज़ है। उसके सिवाय में अगर हम देखें, हम किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो डर जाते हैं और हमारे हार्मोन्स कि सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि पसीना आ जाना है, हमारी आइज बिग हो जाना है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो सिम्टम्स हमारे कि दिखते हैं, तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग के एक पार्ट है। बट like a plants, in the plants they doesn't have any types of a muscular tissue or any type of a nervous tissue. So how they coordinate with any situation or any condition, how can they grow, how can they perform their activity, they do the photosynthesis process. So for this, unlike that, the animals in plants have a no tissue to pass any message from one tissue to another. It means they doesn't have any types of a tissue for passing the message from one place to the another place. In our body, it means in a human beings or any other animals, they have a nervous tissue. They pass the message from one place to the another place. But in the plants, they doesn't have any types of a muscular tissue or any types of the other tissue. They can able to pass the message. So we talk about this, and the plant cell can pass the electrical and the chemical signals and thereby convey this information from one cell to the another cell. इट मीन्स कि प्लांट्स में क्या होता है, तो प्लांट सेल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं और केमिकल सिग्नल्स पास करते हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स की हेल्प से क्या होता है, तो उनके जो मैसेज होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के, जो कन्वर्जेशन के मैसेज है, वो सारे ही मैसेज इसके बेस पे वो इजीली क्लियर कर पाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, तो ये तो हमने बात की कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। नाउ द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है प्लांट्स की, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये जो दो पार्ट्स के बारे में हमें बात करनी है, वो दो कौन से पार्ट्स है, कि किस तरह से दो टाइप्स कौन से है उसके। सो द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज मेनली टू टाइप्स। सो विच मेनली टू टाइप्स, तो फर्स्ट वन इज द growth dependent movement and the second one is the growth independent movement. So in the growth dependent movement, we know it means कि we understood through the name, हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है इसका कि हम कि ये जो टाइप्स है वो क्या बताना चाह रहा है, कि एक जो मूवमेंट है, एक जो प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो किसके हेल्प से हो रहा है। तो एक टाइप का कोऑर्डिनेशन है कि जो ग्रोथ के बेस पे डिपेंडेंट है, और जो सेकेंड टाइप का उसका कोऑर्डिनेशन है वो ग्रोथ का
मतलब कि उसको सेकंड टाइप के कोऑर्डिनेशन को जो इंडिपेंडेंटली है, जिसको ग्रोथ के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये दो तरह के कोऑर्डिनेटिंग पार्ट्स और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो चलिए अब डिटेल में हम देखते हैं कि ये जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है वो क्या है और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो क्या है, विद एग्जांपल्स। सो नाउ वी सी द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। सो इन द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट वी सी हाउ मैं इट मीन्स जो प्लांट्स जो है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है मूवमेंट के लिए, तो किस तरह से। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें कि व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट goes down the stem comes up into the air, it means क्या सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया है जो आपको फिगर में इजीली विजिबल हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कि ये जो फिगर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिगर के अंदर जो मैंने बताया है आपको कि एक सीड जो है वो जर्मिनेट हो रहा है। अब जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो सीड क्या कर रहा है, ये जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, तो उसका जो रूट पार्ट है वो रूट पार्ट कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड साइड में। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रूट पार्ट, और यहाँ पे जो अपर पार्ट है उसका वो है स्टेम पार्ट। तो ये जो स्टेम पार्ट है वो क्या होगा, तो स्टेम पार्ट वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब ये जो स्टेम पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा और रूट पार्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रो हमें करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है इसकी, वो मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है कि वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्लांट ग्रो करता है तभी तो उसकी मूवमेंट हमें देखने मिलेगी, तभी तो रूट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा और जो स्टेम पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है प्लांट की वो कैसी मूवमेंट है, वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। नाउ वी सी द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग्स कॉज्ड बाय द ग्रोथ। मतलब कि ये जो मूवमेंट हो रही है सीडलिंग्स की, सीड्स की, कि रूट जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो स्टेम पार्ट है वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो मूवमेंट है उसकी, ये मूवमेंट हमें ये बता रहा है कि ये जो मूवमेंट वो सीडलिंग्स की जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि रूट ऑलवेज डायरेक्शनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो स्टेम है वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अब हम जो देखते हैं, इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट, मतलब कि वो क्या करता है, तो ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और विल नॉट शो एनी मूवमेंट, जो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। मतलब कि ये जो पार्ट है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट मूवमेंट है, कि ग्रोथ अगर इसका हमें जो देखने मिलता है तो ये मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिल रही है प्लांट्स में। कि मतलब कि हम तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि भी प्लांट्स तो ना तो हिलते हैं ना चलते हैं ना, मतलब हमें उसमें क्या दिखता है तो हम कैसे उसको लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं। तो जो प्लांट है वो ग्रोथ मतलब उसका करता है, और इसी वजह से हम मान सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो कैसे है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में हम मानते हैं उसको। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या है। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी मूवमेंट कि जिसको ग्रोथ के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस टाइप की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब कि इस मूवमेंट को ग्रोथ के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, when we touch the leaves of a touch me not plant of the mimosa family, it means if we touch the touch me not plant, touch me not plant को हम छुई मुई भी बोलते हैं और गुजराती में उसको लजामणीनो छोड़ कहिए છીએ આપણે। तो ये जो टच मी नॉट प्लांट है, ये टच मी नॉट प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो लीव्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच करते हुए आपको दिखा रही हूँ कि ये जो टच कर रहा है प्लांट को, तो प्लांट को जैसे ही टच करेगा तो फिंगर, वो जो फिंगर उसको टच होगी तो उससे जो रिएक्शन होगा, जो केमिकल सिग्नल्स उसमें पास ऑन होंगे टचिंग के, सेंस के, तो इस वजह से वो जो प्लांट है वो उसकी जो लीव्स है वो लीफ क्या हो जाएंगी, वो लीफ एकदम से क्लोज हो जाएंगी। मतलब थोड़ी देर के लिए ये जो लीव्स है वो सारी क्लोज हो जाएंगी। सो फोल्ड अप हो जाएगी, दे बिगेन्स अ फोल्ड अप, मतलब कि फोल्ड हो जाती है ये लीफ। नाउ द लीव्स सच ऑफ सच अ प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। मतलब कि ऐसे प्लांट की जो मूवमेंट है वो तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है टच के सामने। नाउ वी सी देयर इज अ नो ग्रोथ इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट। मतलब कि इस मूवमेंट के अंदर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो हमने देखा तो ये था ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। अब हम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को
डिटेल में, मतलब कि ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जो हमने देखा तो उसके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, जैसे कि स्टिम्यूली की वजह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और सनलाइट की वजह से कैसे ग्रोथ होता है प्लांट्स का, उसके सिवाय में ग्रेविटेशन कैसे अफेक्ट करता है, उसके सिवाय वाटर कैसे अफेक्ट करता है, देन टच किस तरह से अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।